بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ ہمارے چینل پہ اپلوڈ کیے جانے والے تمام عملیات 100% نورانی اور قرآنی ہیں اور با اجازت ہیں، سب کو ان کی اجازت عام ہے، اور آپ کو جس عمل سے فائدہ پہنچے اس عمل کے حوالے سے کامنٹ باکس میں اپنا مختصر کامنٹ ضرور کیا کیجیے۔ شکریہ۔ آج کی جو ویڈیو ہے یہ بنانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ بہت سوالات تھے لوگوں کے، واٹس ایپ میسیجز میں بھی اور ذرائع سے بھی، فونز کال کے ذریعے بھی، بہت ساری کالز بھی اس طرح کی ہمیں آئی جن میں کوئی بندہ جو ہے وہ کہتا ہے مجھے فلاں چیز کا عمل بتا دیں، میں اس کا عامل بننا چاہتا ہوں، کوئی کہتا ہے مجھے فلاں چیز کی زکوٰۃ بتا دیں، کوئی کہتا ہے مجھے ایسا عمل بتا دیں کہ میرے پاس پیسہ بہت آ جائے، کوئی کہتا ہے جی مجھے ایسا عمل بتا دیں کہ میرے کوئی جن قابو میں آ جائے، کوئی کہتا ہے مجھے ایسا عمل بتا دیں کہ میری جو ہے وہ باطنی آنکھ کھل جائے، کوئی کہتا ہے غرض کے ڈیفرنٹ جو ہے وہ لوگوں کی راہ ہیں۔ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے بڑے عمل وظیفے چلے کیے ہیں، ہمارا عمل ہمارا وظیفہ کام نہیں کرتا۔ تو ایسے تمام لوگوں کے لیے آج یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں، اور اگر کسی نے ان باتوں کو اپنی زندگی میں پریکٹیکلی شامل کر لیا، حقیقت میں شامل کر لیا، تو اللہ کے فضل سے وہ اس عامل سے بھی بہتر ہوگا جو 1000 چلے کرتا ہے، جو آنکھ ہی کسی عامل کے گھر کھولتا ہے اور ساری زندگی چلے وظیفے کرتا رہتا ہے، وہ بندہ اس عامل سے بہتر ہوگا، اور وہ ہزاروں جو ہمیں نامی گرامی عالم نظر آتے ہیں وہ ان عالموں سے بہتر ہوگا، جو بہت سارے ہمیں نامی گرامی بڑی لمبی لمبی وہ داڑھیاں اور لمبی لمبی تمہیدیں باندھنے والے جو بڑے نیک نظر آتے ان نیکوں سے بہتر ہوگا۔ اور جس نے اس بات کو سمجھ لیا، جس نے اس بات کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا، وہ انشاءاللہ تعالی جنت، خالی جنت میں نہیں جائے گا، وہ جنت والا بن کے جائے گا۔ اب جنت میں جانے والے کون ہیں اور جنت والے ہو کے جانے والے کون ہیں، اس کے اوپر بھی کسی دن آپ سے تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ہمارے علماء حضرات کا تو یہ طریقہ کار ہے کہ لمبے لمبے مجمع اکٹھے کر کے، لمبی لمبی تقریریں کر کے، لوگوں کو رلا کے، لوگوں کو بالکل تھکا کے، لوگوں کو بے بس کر کے، اینڈ ان کا کس بات پہ ہوتا ہے؟ جنت دے دے، جنت دے دے، جنت دے دے، بس جنت جنت جنت۔ کبھی جنت والے کو نہیں مانگا، کبھی جنت والے کی رضا نہیں مانگتے، جنت والے کا قرب نہیں مانگتے، جنت والے کا راستہ نہیں مانگتے۔ لمبی لمبی نمازیں، لمبی لمبی عبادتیں، لمبی لمبی تقریریں، بڑے بڑے مگرمچھ کے آنسو، اور خود غرضی یہ کہ صرف ہمیں جنت دے دے۔ ہماری عبادتوں کا نصب العین، ہماری عبادتوں کا مقصد، ہماری ریاضتوں کا مقصد، ہمارے مجمع لگانے کا مقصد، ہمارے رونے دھونے کا مقصد، یہ سارا کچھ کرنے کا مقصد صرف اور صرف ایک چیز میں ساری کی کرائی کو محدود کر دیا کہ بس جنت دے دے، جنت دے دے، اور کچھ نہیں۔ جنت وہ دے گا، سب کو دے گا، جو اس کے مستحق ہیں ان سب کو دے گا، لیکن جنت لینے کا اپنا طریقہ درست کرو، اور راستہ ہمیں وہ اختیار کرنا چاہیے جو دنیا میں بھی کامیابی کا ہو اور آخرت میں بھی کامیابی اور بھلائی کا ہو۔ تو میں یہ
समझाना चाहता हूँ कि सिर्फ मेरी इन चंद बातों के ऊपर अमल कर लो, और जो बंदा हकीकत में इस पे अमल कर लेगा वो 1000 चिल्ले 1000 वजीफ़े करने वालों से बेहतर रहेगा इंशाअल्लाह ताला, दुनिया में भी आखिरत में भी। जो इन बातों पे अमल कर लेगा वो 1000 मोकलों की जो काबू करने वाले हैं उनसे बेहतर रहेगा। 2 काम कर लो, सिर्फ 2 काम। एक, नमाज को फॉर्मेलिटी ना समझो। नमाज को खाना पूरी के लिए वो 5 टाइम गए और वो गाड़ी का मोटरवे की तरह एक्सीलेटर दबाया और ठा 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 करके बस 4 सजदे दिए और बाहर आके, ये नमाज इस तरह से ना करो। नमाज को सही तरीके से कायम करो। हम जब नमाज के लिए अल्लाह के हजूर खड़े हो जाएं तो अपने जहन को इस कदर पुख्ता करने की ज़रूरत है कि नमाज के दरमियान कोई काम नहीं इस चीज़ का कि मैंने फ़लाँ से लेने हैं, फ़लाँ के देने हैं, फ़लाँ के साथ ये मामला है, फ़लाँ के साथ वो मामला है। नमाज को कायम करो और नमाज जिन चीज़ों से रोकती है उनसे हकीकत में रुक जाओ। अपने नमाज़ों को बेहतर करने की कोशिश करो। खाली 5 वक्त की पाबंदी कर लेना कोई बहादुरी नहीं है। 4000 बंदा इकट्ठा करके नमाज पढ़ा देना कोई बहादुरी नहीं है। नमाज को प्रैक्टिकल अपनी ज़िंदगी में लेके आओ। नमाज को कायम करो, कायम करो कि जिसके हजूर हाजिर होते हैं मुकम्मल हमारा जिस्म, हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारी रूह, हर तरह से उसके सामने हम हाजिर हों। इस तरह से अपनी नमाज़ों को प्रैक्टिकल बनाओ। दूसरी आदत, एक चीज़ छोड़ दो, अपनी सोच से, अपनी नज़रों से, अपने ख़यालात से, अपने इरादों से बेहयाई को, बेशर्मी को बिल्कुल निकाल दो। किसी भी मसलक से, किसी भी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हो, ठीक है, सब मुसलमान हैं। किसी भी पीर के मुरीद हो, मुझे कोई गर्ज नहीं है इससे, मगर अपनी ज़िंदगी से बेहयाई को निकाल दो। मैं अगर साफ लफ्ज़ इस्तेमाल कर दूं, अपनी ज़िंदगी से ज़ना को, बेहयाई को, बुरे ख़यालों को निकाल दो। मर्द हो तो इस चीज़ का अल्लाह से वादा कर लो कि ना किसी मर्द की तरफ नाजायज़ रवाबित, नाजायज़ ताल्लुकात बढ़ाओगे। अगर इससे पहले कभी कर चुके हो तो उसको ख़त्म कर दो। और ना अपनी बीवी के अलावा किसी की तरफ बुरी नज़र से देखोगे, ना बुरी सोच रखोगे, ना बुरा ख्याल रखोगे, ना ऐसी गैदरिंग में, ऐसे लोगों में बैठोगे जो इस ख्यालात के, इस तरह के सोच के मालिक हों। अगर शादीशुदा नहीं हो तो अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह से वसाइल मांगो कि अल्लाह आपके फाइनेंशियली मामलात भी बेहतर कर दे और अल्लाह आपको कोई नेक और आपके जोड़ का कोई सही रिश्ता अता फरमा दे। इसी तरह से औरतें जो हैं वो भी अपने शोहर के अलावा किसी भी किस्म का कोई नाजायज़ ख्याल ना रखें, किसी के मतलब बुरी नज़र ना रखें, किसी के मतलब जो है वो किसी भी किस्म की कोई इस तरह की एक्टिविटी में, इस तरह के काम में मुलव्विस ना हो। जिसको बहुत बड़ा आमिल बनने का शौक़ है ना, वो सिर्फ ये काम कर ले। ज़ना को अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल निकाल के दूर फेंक दो। जिस तरह बंदा किसी चीज़ से होता ही ना वाकिफ़ है, ये हमारा ये रास्ता ही नहीं। और इस कदर निकाल दो कि अपनी आँखों को भी बचाओ, अपने ज़ुबान को भी बचाओ, अपनी सोच, अपने ख़यालात को भी बचाओ, अपने दिमाग को भी बचाओ, अपने दिल को भी बचाओ, और अपना माहौल इस तरह का बना लो कि ये चीज़ निकल जाए। जिस बंदे ने इस चीज़ के ऊपर काबू कर लिया ना, ये वो
रास्ता बता रहा हूँ जिस पे अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह पाक की दी हुई हिम्मत से मैं खुद कायम हूँ, वो आपको वो रास्ता बता रहा हूँ कि मैंने वो लोगों की तरह कोई कब्रों में उल्टे लटके लंबे लंबे चिल्ले नहीं किए। लेकिन जो बहुत बड़े बड़े चीज़ें हैं ना, यहाँ पे मुझे कोई दावा करने की ज़रूरत या फ़ायदा नहीं है, लेकिन वो जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं ना, बड़ी बड़ी ताकतें, जो ये जो काली पीली ताकतें, अल्लाह के फ़ज़ल से, मेरे अल्लाह की मेहरबानी से वो भी सर झुकाती हैं, ज़ुबान नहीं खोलती, दूसरी को बात नहीं करती। और अगर कुछ प्रैक्टिकली हासिल करना चाहते हो ना, तो इस पे अमल कर लो। जो बंदा इस बेहयाई से, जना से, बुरे ख्यालात से अपने आप को नहीं बचा सकता, वो चाहे कोई मर्द है, वो चाहे कोई औरत है, वो जितनी मर्ज़ी नमाज़ें पढ़ ले बेकार, जितने मर्ज़ी सदक़े कर ले बेकार, जितनी मर्ज़ी खैरातें कर ले बेकार, जितने मर्ज़ी जो है वो लोगों की खिदमतें कर ले बेकार, जो मर्ज़ी कर ले, उसको कुछ नहीं मिलने वाला, ना दुनिया में ना आखिरत में। जो बंदा ज़ना से अपने आप को नहीं बचाता, जो बंदा इस गंदगी में किसी भी कदर इन्वॉल्व होता है, वो आमिल बनना तो दूर की बात है, वो शायद अपने मामलाते ज़िंदगी को ही एक इंसानों की तरह नहीं चला सकेगा। उसने अपनी दुनिया और अपनी आखिरत अपने हाथों से बर्बाद कर दी। और मैं ये बात यहाँ पे करने वाली है नहीं, लेकिन मैं अपने, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह उतनी बात करता हूँ जितना मैं खुद प्रैक्टिकल हूँ, तो ऐसे कुछ लोग जिनकी ये गंदगी, जिनकी ये खबासत दूर नहीं हुई, जिनमें मिस्टर सरफराज सर फहरिस्त, 3-4 लोग इसके अलावा और भी हैं, इन तमाम को आज आप सबको गवाह बना के मैं अपने रूहानी मामलात और अपने रूहानी हिसार से बाहर निकाल रहा हूँ। तो सबसे बड़ा अमल ये है, इस गंदगी से, इस खबासत से, इस नजासत से, इस बेहयाई से, इस बदकारी से बचना। सबसे बड़ा अमल ये है, सबसे बड़ी ताकत ये है, सबसे बड़ा फैज़ इसी में है। जब नज़रें झुक जाएंगी, नज़रों में हया पैदा हो जाएगी, तो जिन्नात काबू नहीं करने पड़ेंगे। खुद तुम्हारी नौकरी करने के लिए वो खुद तरसेंगे, वो खुद तुम्हारे पास आके हाथ जोड़ के कहेंगे कि हमारी कोई ड्यूटी लगाओ, हमें कोई काम बताओ। खुद तुम्हारे जूते वो सीधे करेंगे। तो इसलिए जो लोग ये भी कहते हैं हमारे वजीफ़े नहीं काम करते, वो भी इस पे अमल कर लें। जब इस पे अमल करेंगे, आपका बातिन साफ़ होगा, आपका दिल साफ़ होगा, आपकी रूह की बेदारी होगी, आपका दिमाग साफ़ होगा, तो फिर एक दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ोगे किसी जायज़ मकसद के लिए, तो आपका वो भी पूरा हो जाएगा अल्लाह के फजल से। सबसे बड़ा फार्मूला आपको दे रहा हूँ। जो लोग भी रूहानी लाइन में, जितने भी लोग हैं, जितने नामवर लोग हैं, जितने वली गौस कुतब अब्दाल गुजरे हैं, वो सब ने कोई ना कोई एक नुक्ता पकड़ा है। तो हम उनके जो कदमों की खाक के बराबर नहीं है, लेकिन हम इस नुक्ते को पकड़ के चलते हैं कि वो हमारा दोस्त नहीं हो सकता, वो हमारा शागिर्द नहीं हो सकता, वो हमसे जो है वो इस मामले में उसे कुछ नहीं मिल सकता जिसकी ज़िंदगी से ये बेहयाई दूर ना हो, जिसकी ज़िंदगी में, जिसकी सोच में, जिसकी नेचर में, जिसकी नज़र में ये चीज़ शामिल है, वो इसमें शामिल नहीं हो सकता। तो जिन लोगों को बाहर निकाला है, उनमें से एक का मैंने नाम लेके इसलिए बता दिया, 3-4 लोग इसकी कैटेगरी के और हैं, लेकिन मिस्टर सरफराज ख़ास तौर पे आपको निकाल दिया, अपने रूहानी हिसार से बाहर निकाल दिया। हमने अपने रूहानी हिसार से बाहर निकाल दिया, हमने अपने रूहानी हिसार से बाहर निकाल दिया, और मुकम्मल तौर पे हमने इनको अपने रूहानी हिसार और अपने रूहानी मामलात, अपनी रूहानी नज़र से बाहर निकाल दिया। तो बात को अगर समझ लो तो यही काफ़ी होगी। और जिनको ये समझ आ जाए, जो प्रैक्टिकली इसके ऊपर कायम हो जाएं, वो फिर आगे हमसे
مزید اس حوالے سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ بہت ساری چیزوں کی رہنمائی آپ کے اندر سے ہوگی، لیکن پھر بھی جو رہ جائے اس کے لیے جتنا اللہ نے مجھے دیا میں اس کے مطابق حاضر ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آپ سب کو عمل کرنے کی، اور مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق اور ہمت پیدا فرمائے، ہمت عطا فرمائے ہمیں سب کو عمل کرنے کی۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، وہ جنت میں جانے والے کون ہیں اور جنت والے ہو کے جانے والے کون ہیں، اس کے اوپر پھر کبھی انشاءاللہ بات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Zero faces. One face at center. Zero faces. Pause video record.